आईडी से करना है? हाँ, स्कूल वाले आईडी से। बोलिए। अरे यार, गूगल मीट का कोड एक ऐसे रहने दीजिए। हाँ हाँ। अरबिंदो वाला है क्या? अरबिंदो है ना, अरबिंदो है, अरबिंदो घोष। आपने अपने से लॉगिन कर रखा है क्या? हाँ, अपने से। तो फिर अपने से ही करो ना। अरे सर, रिकॉर्डिंग करना है ना, मैडम रिकॉर्डिंग करने बोल रहा था। रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी, अकाउंट से मैं कह रहा था, प्रिंसिपल वाले अकाउंट से करना जरूरी है क्या? विकास सर, माइक्रोफोन ऑन है। यहाँ पे स्पीकर लगा है।
ये उत्तम सर के साइन किसने कर दिया? कृति थैंक यू शैलेंद्र। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमी महाजन श्रीबंधु सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे उपस्थित ऑल दी टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स एंड स्पेशली मेरी को पता चला कि मिनी मैडम असिस्टेंट कमिश्नर मुंबई रीजन इज़ आल्सो प्रेजेंट। सो मैं मैडम का हार्दिक स्वागत करती हूँ एंड धन्यवाद भी करना चाहूँगी फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट दिस सेशन। तो सबसे पहले ये आज का सेशन है जिसमें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो पर्पस ऑफ दिस सेशन इज दैट can implement these programs, project inclusion and Oro Scholar in your school very well. So as you know that Sri Aurobindo Society is a not-for-profit organization. We are based in Pondicherry, but we have 300 centers and branches across the globe. Rupantar initiative of Sri Aurobindo Society is towards transforming education in India. Under Rupantar, we have various projects like competency based learning, competency based assessment, project based learning, project inclusion, and Oro Scholar. And these programs are very well aligned with the vision of NEP 2020. So the purpose of implementing these program in all the Kendra Vidyalaya is that somehow we will be reaching towards the goal of NEP 2020 first, and these all programs are envisioned for the modern education what we are expecting that our school should have. For that, definitely we need this capacity building of all the teachers, and for that we are already doing the program. So project today's session is about that all of you can take the leadership in the project inclusion program of the
of Rupantar, where you will represent your school and you will ensure that the project inclusion is implemented very well in your school at any point, and you will be the spokesperson for your school, so that if you feel any problem during the program, so you can be the contact person who can get back to us, and we will ensure that there is a seamless delivery of the program. Teachers are supported at every level when they are doing the program, and you are also supported. So that is the purpose of having today's session. So I will request everyone that please pay your attention and listen to the program very very carefully, so that you can understand what are the important features of project inclusion program. And after the end of the program, don't hesitate to ask your questions on any clarity if you require about the program, because ultimately we will be relying on you in future, that you will help us in implementing the program in this school. So not taking much of a time, I again want to thank you, Mumbai region, for having for giving us the opportunity. And I can proudly say one more thing is that Mumbai region is one of the top region of the Kendra Vidyalaya, where maximum teachers have completed phase 1 of the program project inclusion training. So it is about more than 87% of Mumbai region teachers have completed their phase 1 training program. And so that is something, the best result we have got. But just wanted to say that our journey doesn't stop here. We have to now move to the next phase of the program, which is identification of the children in the classroom. So whatever we have learned now, our learning will be the proof of how we are identifying our children in the classroom, and then how we will be trained to work with these children. So, and as we promise, we will be supporting you completely at every step of the program, every phase of the program. The only thing we require from is your participation. So again, Kachap madam, great thanks to you for giving us an opportunity. Dhanyavad. So I will be here in this session. So end of this session, if you people have any doubt, any query you have, we will be taking care of it. Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. करनी है कि नहीं दोनों जगह Good afternoon, sir. I am from KV Dhule.
हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, उसमें बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार मैम। और ऑर्गेनाइजिंग टीम में जितने भी सारे लोग हैं और जितने पार्टिसिपेंट्स, आज तो अच्छी खासी संख्या दिख रही है पार्टिसिपेंट्स की, तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि ये सेशन जो है बहुत ध्यान से सारे लोग भाग लेंगे। जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, सेशन के बाद सारे लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछें। और मैं ये उम्मीद करूंगी कि हम लोग साथ मिलके बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा है वो कर पाए। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी, सारे लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम और डिटेल में प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे थ्रू प्रोजेक्ट इंक्लूजन हम टीचर्स की और स्टूडेंट्स की और बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे, कैसे हम एक्चुअली इंक्लूसिविटी क्लासरूम्स में ला पाएंगे और इस पूरे जर्नी में हम कैसे टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे। इसी के साथ साथ हम और डिटेल में वील ऑल्सो बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। आप सभी जो टीचर्स आज यहाँ इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं, आप सभी एज कोऑर्डिनेटर्स अपना रोल प्ले करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, आप कैसे किसी भी अपने स्कूल में मौजूद टीचर्स की मदद करेंगे, उस सब के बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले we'll have a look at some numbers। ये कुछ स्टेटिस्टिक्स है, कुछ नंबर्स है। और सबसे पहला नंबर जो मुझे दिखता है दैट इज द पीपल विथ डिसेबिलिटीज, जो हम कहते हैं। तो इंडिया में जो जनगणना हुई थी, भारत में जो 2011 की जनगणना हुई थी, उस हिसाब से जो हमें नंबर मिला है ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज दैट इज ऑफ 26.8 मिलियन। ये नंबर तकरीबन हमारे पॉपुलेशन का 2.21% है। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं यूनेस्को की रिपोर्ट जो 2019 में जारी की गई थी, which gives us the number of children which are disabled in India, the number of children under 19 years, that number comes up to 7.8 million. तो keeping this in mind, इसको भी जहन में रखते हुए हम कुछ और specific numbers देखते हैं of the disorders। तो सबसे पहले हम देखते हैं SLD, जिसे हम specific learning disability भी कहते हैं। तो कहा जाता है that nearly 1 in 12 children in India, हमारे देश में nearly 1 in 12 children have SLD। तो जब हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, NDD की बात करें, तो कहा जाता है that about 1/5 of these children have 2 or more NDDs, 2 or more neurodevelopmental disorders। और फिर जब हम ASD की बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की बात करें, तो 1.7 to 2 million children in India कहा जाता है कि those are the children with ASD। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये नंबर्स कितने बड़े हैं। पर आज हम जो यहाँ गैदर हुए हैं, आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, ये सिर्फ हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने तो एकत्रित नहीं हुए हैं, हम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने पे एकत्रित हुए हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस जो NEP के द्वारा भी एंडोर्स किया गया है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। NEP भी कहता है दैट प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन विल हेल्प विद द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जब इन्हीं बच्चों को हम बाकी बच्चों के साथ पढ़ने का एक अवसर देते हैं, एक मौका देते हैं, तो दे आर ऑल्सो एबल टू अचीव द रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ टीचर्स, रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स, एंड साथ ही साथ उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बाकी बच्चों के साथ होती है। फिर अगर हम RPWD की तरफ भी देखें, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो 2016 में जारी किया गया था, उस एक्ट ने भी जो पहले मानी जाती थी 7 डिसेबिलिटीज के नंबर को 21 डिसेबिलिटीज को भी रिकग्निशन दिया है। सो दैट ब्रॉडन्स द स्पेक्ट्रम ऑफ डिसेबिलिटीज इन इंडिया। सो ये सारे चेंजेस है जो गवर्नमेंट लेवल पर भी
किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा जो हमारे ये बच्चे हैं इन्हें भी सपोर्ट मिल रहा है, इन्हें भी कोई मदद मिल रही है। तो इसी के साथ साथ हम आगे देखते हैं दैट व्हाट इज़ नेसेसरी। जब हम बात करते हैं कि हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर काम करना है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप स्पेशल एजुकेटर और टीचर के बीच में। जब तक एक स्पेशल एजुकेटर और एक टीचर सिंक्रोनसली काम नहीं करेंगे, जब तक दोनों साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम एक स्टूडेंट के ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज जब तक एक टीचर अपने क्लासरूम में ऐसे स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर लेती, जब तक उन्हें वो साइंस और सिम्टम्स कौन से हैं उन्हें देखना समझ नहीं आता है, तब तक वो स्पेशल एजुकेटर की मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है एक स्पेशल एजुकेटर और टीचर के बीच की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। उसी के साथ साथ एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। एंड हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे इंडिया में जो स्कूल्स है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर, एक स्पेशल एजुकेटर मौजूद है, या फिर बाकी के एक्सपर्ट्स जो शायद एक वीकली बेसिस पर तो आते हो। तो इसीलिए एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो एक साथ मिलकर इन बच्चों के लिए काम कर सके। उसके बाद सपोर्टिंग टीचर्स, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन तो हमारा सिर्फ एक गोल है, उसके बाद बच्चों के साथ काम करना भी तो नेसेसरी है कि हमें किस तरीके से बच्चों के साथ काम करना है, हमें क्या आगे कदम लेने हैं। तो इसीलिए एक सपोर्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आता है एक्सेसिबिलिटी। जैसे मैंने कहा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें शायद ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, और उसके साथ साथ ऐसी टेक्नोलॉजी भी उनके पास नहीं है जो उन्हें अपने रीजनल लैंग्वेज में ये रिसोर्सेज वो उसे इस्तेमाल कर सके। तो इसीलिए एक मल्टीलिंगुअल स्केलेबल टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, ताकि हमारे देश के कोने में बैठा हर टीचर अपने रीजनल लैंग्वेजेस में इस रिसोर्स को एक्सेस कर सके, जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सेस कर सके। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट एंगेजमेंट। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब टीचर से कि सेशन के दौरान आप सभी अपना माइक म्यूट पर ही रखिएगा, इससे बैकग्राउंड नॉइस की वजह से सेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। थैंक यू। तो जैसे कि मैं कह रही थी, स्टेट गवर्नमेंट की एंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट कुछ हद तक इन्वॉल्व नहीं होती है कोई इन बच्चों को अपने राइट्स दिलाने में, उनके जो उन्हें सपोर्ट दिलाने में, तब तक हम जितनी भी मदद कर लें इन बच्चों की, उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका नहीं मिल पाता। उसी के साथ साथ ज़रूरी होता है इन टीचर्स का खुद को अपस्किल करते रहना, खुद को अपडेट करते रहना, जैसे कि ये कोर्सेज के द्वारा या फिर वर्कशॉप्स के द्वारा, ताकि बिकॉज हमारी फील्ड में कुछ ना कुछ नई खोज होती रहती है। there are some new pointers that come forward every day. It's very important for these teachers or for any teacher in general to remain up to date with this new research or these new ways of teaching the children now. उसी के साथ साथ increased and strong parental participation. After the school, it is the home in which the child spends most of their time. So if parental participation is not at an adequate level, तो बच्चे की ग्रोथ में भी बहुत तकलीफ आती है, because parental participation is very necessary. Parental awareness is very necessary regarding the problems that the child is facing. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कहते हैं that these are the things that we need, these are the basic things that we need in order to help our students, in order to get them to the level of the inclusivity that we desire. और यही हमारी कोशिश रहती है प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ भी। तो अगर मैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात करूँ तो हमारी शुरुआत 2016 में हुई थी। जब हमने शुरुआत की थी तो हमने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की थी, एंड वी यूज्ड टू टेक 3 to 4 days of on ground workshops for our teachers. So when we began at the very start, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते थे जो वर्कशॉप के पहले आकर बताते थे कि मैम हमारे क्लास में तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे ऐसी कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस है, वी डोंट हैव एनी सच स्टूडेंट इन आवर क्लासरूम। पर जब इन्हीं
20,000 प्लस टीचर्स को इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में ओरिएंट किया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ओरिएंट किया गया, उन्हें सेंसिटाइज किया गया इन सारी चीज़ों के बारे में, बताया गया कि वो कौन से साइंस और सिम्टम्स है जिनकी तरफ हम अपनी नज़र डाल सकते हैं, उन्हें अवेयर किया गया इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इट वाज दीज 20,000 प्लस टीचर्स जिन्होंने अपने ही क्लासरूम में 18,000 से भी ज़्यादा NDD के केसेस रिकग्नाइज किए या फिर ढूंढ कर निकाले। और फिर जब हमारी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेशनल्स ने वही स्कूल्स में जाकर असेसमेंट्स कंडक्ट किए, तो दे कन्फर्म more than 6,000 cases of neurodevelopmental disorders. So you can see when it was the same teachers which were given the adequate information, which were given the necessary information, and when they were sensitized, they themselves were able to spot so many children from their classroom. So what's necessary is awareness, what's necessary is sensitization. और यही हम कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ। तो जैसे मैंने कहा, हमने शुरुआत की थी 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, और फिर वहाँ से बढ़कर हम आज हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ बढ़े हैं। तो 2020 में जब पैंडेमिक आया तो वी रियलाइज कि हम जो ये ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं सिर्फ वही काफ़ी नहीं होंगी, हमें और भी ज़्यादा टीचर्स तक पहुँचने की ज़रूरत है, which is why we decided to take our entire project on a digital medium. क्योंकि जब हम ये ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स लेते हैं, ऑन ग्राउंड वर्कशॉप्स लेते हैं, तो फॉर द टीचर्स ऑल्सो इट्स क्वाइट अ हैसल। उन्हें अपने स्केड्यूल्स में बदलाव लाना पड़ता है, उन्हें क्लासेस रीस्केड्यूल करने पड़ते हैं, ये ट्रेनिंग की तरफ अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम ये पूरा प्रोजेक्ट एक डिजिटल मीडियम पर ले जाएंगे। तो अगर मैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात करूँ तो इसे 3 फेजेस में, 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट फेज है उसमें हमारा कोर्स है, जैसे कि मैम भी कह रहे थे, आप में से बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जिन्होंने हमारा ये कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। इस कोर्स के द्वारा हम टीचर्स को डिसेबिलिटीज़ के बारे में सेंसिटाइज करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं कि कैसे वो बच्चों को क्लासरूम में इंटीग्रेट कर पाए। और ये जो कोर्स है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का, क्योंकि इसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन टीचर्स तक पहुंचाई जाती है, it is based on this information that the teachers can go ahead in their journey and go ahead and conduct the screening of the children. So screening में teachers in detail जान पाते हैं कि बच्चों की problems कहाँ है, कौन से क्षेत्र में है और exactly वो problem क्या है। मैं कुछ ही देर में आगे और डिटेल में हर एक फेज के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जैसे कि मैं कह रही थी, स्क्रीनिंग के द्वारा टीचर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एग्जैक्टली बच्चे को कौन से क्षेत्र में, कौन से डोमेन में प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब तक हम उस प्रॉब्लम, उस चैलेंज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम उसे एड्रेस कैसे ही करेंगे। तो इसीलिए फेज 2 के द्वारा टीचर्स उस डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और एक बार हमने वो डिफिकल्टी आइडेंटिफाई कर ली, वो प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, तो उस पर ही बेस्ड टीचर्स को फेज 3 में इंटरवेंशंस दिए जाते हैं। सो थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरवेंशन प्लान्स, थ्रू द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजीज, जो हर एक बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसे एड्रेस किया जाता है। बिकॉज एवरी चाइल्ड विल हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम, एवरी चाइल्ड विल हैव अ डिफरेंट चैलेंज, और उस डिफरेंट चैलेंज को एड्रेस करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हर एक इंडिविजुअल चाइल्ड की इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए उन्हें फेज 3 के द्वारा ये स्ट्रैटेजीज उपलब्ध करे जाएंगे। तो कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट इंक्लूजन को इन 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। और ये सारी इंफॉर्मेशन, ये पूरा स्क्रीनिंग का टूल, स्क्रीनिंग का फॉर्म और आगे चलकर जो इंटरवेंशन भी है, ये सारी चीज़ें टीचर्स ऐप के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, जो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम इसके कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते, ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। बिकॉज हम चाहते थे कि जितने ज़्यादा टीचर्स ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाए, जितने ज़्यादा टीचर्स क्लासरूम में अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आसानी से कर पाए। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट डिवाइडेड है, और हम आगे चलकर अभी हर एक फेज के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फेज है वो सेंसिटाइजेशन पर आधारित है। जैसे कि मैंने कहा था, इसमें हमारा कोर्स है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। जो हमारा कोर्स है उसका नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1।
इस कोर्स में 17 मॉड्यूल्स है और हर मॉड्यूल में लगभग 4 वीडियोस है। ये जो वीडियोस है इसका सैंपल मैं आपको कुछ ही देर में आगे दिखाऊंगी। बहुत ही फन, बहुत ही क्रिएटिव वीडियोस है, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज वी रियलाइज दैट द टीचर्स होल्ड अ वेरी बिजी स्केड्यूल। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम इन वीडियोस को शॉर्ट रखें। इन वीडियोस के साथ साथ हमने रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध कराया है हर मॉड्यूल में। तो हमने कोशिश की है कि हम उसे भी शॉर्ट रखें, आसान भाषा में करें, ताकि टीचर्स आसानी से इस कोर्स को 8 से 10 दिन में कंप्लीट कर पाए। तो ये 17 मॉड्यूल्स में एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड है हम वो भी जान लेते हैं। So the course content basically consists about information on inclusive education, our education policies on children with NDD, specific learning disability, SLD जिसे हम कहते हैं, ASD और भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ को डिटेल में समझाया गया है, ताकि टीचर्स को एटलीस्ट वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए, टीचर्स क्लासरूम में मौजूद बच्चों को साइंस और सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर पाए। और ये जो मॉड्यूल्स है, जो रीडिंग मटेरियल है, जो वीडियोस है, ये सभी ऑडियो विजुअल कंटेंट पे आधारित है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा जो कंटेंट है वो मल्टीलिंगुअल है। तो अभी भी हमारा कंटेंट 8 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती और भी ज़्यादा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में टीचर्स तक पहुँचा पाए, ताकि हमारे देश में जो भी टीचर्स हैं वो आसानी से अपनी रीजनल लैंग्वेज में इस कोर्स को एक्सेस कर पाए। बिकॉज वी वांटेड टू मेक श्योर दैट लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम 8 रीजनल लैंग्वेजेस में इस कोर्स को उपलब्ध करें, और आगे भी हम कार्य कर रहे हैं इसे और लैंग्वेजेस में उपलब्ध करने के लिए। हर एक मॉड्यूल में एम्बेडेड असेसमेंट्स हैं। So after the completion of every module, the teacher has to take a short assessment based on which the teacher will be given a certificate. और ये जो सर्टिफिकेट्स है बहुत आसानी से आप ऐप के द्वारा अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कोर्स के एंड में असेसमेंट है वो भी बहुत छोटा असेसमेंट है, और उसके अंत में टीचर्स को एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और ये सारे सर्टिफिकेट्स आप डाउनलोड करके अपने कलीग्स के साथ अपने लिंक्डइन पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो इस कोर्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो सबसे पहले जब आप अपना ऐप खोलेंगे और कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहला जो कोर्स आप देखेंगे वो लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स लेवल 1 है। जैसे आप लॉन्च पर क्लिक करते हैं वैसे आप इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। और आगे चलकर और भी ज़्यादा कोर्सेज हैं जो इंटरवेंशन के फेज में आते हैं। तो 1 बाय 1 जैसे टीचर्स अपना ये कोर्स ख़त्म करते हैं, स्क्रीनिंग का प्रोसेस ख़त्म करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा कोर्सेज वो आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, जिनमें उन्हें और डिटेल से समझाया जाएगा कि अगर किसी बच्चे को राइटिंग, रीडिंग या मैथ में डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस कोर्स को ऐप के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन्स पर एक सैम्पल है जो रीडिंग मटेरियल आता है इस कोर्स के द्वारा उसका। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान भाषा में हमने उपलब्ध किया है, और जो भी टीचर अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसे एक्सेस करना चाहे वो कर सकते हैं। और हमने कोशिश की है कि हम इसे शॉर्ट रखें ताकि अपने फ्री टाइम में आसानी से टीचर्स इसे पढ़ सकें और पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकें। और अभी मैं आप सभी को जो हमारे वीडियोस है इस पूरे कोर्स में, उसी वीडियो का एक शॉर्ट सैम्पल आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और इसके बाद मैं आप सभी के साथ वापस जुड़ती हूँ। Dyslexia, understanding the disorder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya.
She's 6 years old, and this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, spell, write, and speak. While these students have a normal vision and are just as smart as their peers, they struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that a supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is a blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards, we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. जी, तो जैसे कि आप सभी ने देखा, ऐसे शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे हर मॉड्यूल के चैप्टर में मौजूद है, जो टीचर्स बहुत आसानी से देख सके अपने फ्री टाइम में और आसानी से इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सके। तो इसी के साथ अभी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि किस तरीके से जो सर्टिफिकेट्स है वो टीचर्स को अलॉट या फिर दिए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हर मॉड्यूल के कंप्लीशन पर एक छोटी सी असेसमेंट होती है। सो फॉर द टीचर्स हू स्कोर मोर देन 50% ऑन दैट असेसमेंट, उन्हें एक मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कुछ इस तरह से दिखता है। पूरे कोर्स के एंड में एक असेसमेंट होती है, एंड फॉर द टीचर्स दैट स्कोर 60 to 75% के बीच में उस असेसमेंट में उन्हें एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उन टीचर्स के लिए जिन्होंने अपना इंथुजियाज्म और अपने हार्डवर्क के साथ और बहुत एफर्ट्स लगाकर 75% से ज़्यादा इस कोर्स कंप्लीशन असेसमेंट पर स्कोर किया होता है, उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें एक ज़रिया ढूंढना था ताकि हम टीचर्स के भी एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर पाए, एक्नॉलेज कर पाए। तो इन सर्टिफिकेट्स के द्वारा टीचर्स अपना ये जो कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया है, ये नॉलेज जो उन्होंने गेन की है, उसे बाकी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट्स आप आसानी से ऐप के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी हमारे फेज 2 की तरफ, जो कि आइडेंटिफिकेशन पर आधारित है। यहाँ टीचर्स डिटेल में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो स्क्रीनिंग हम लोग क्या क्यों कैसे पूछते हैं ना, स्क्रीनिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है और स्क्रीनिंग 1 में टीचर्स वो डोमेन बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से डोमेन, एग्जैक्टली कौन से क्षेत्र में उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आ रहा है। इज इट द चाइल्ड्स social communication domain? Is it his behavioral domain? Is it his academic or his cognitive domain? So where is it exactly that the child's difficulties lie? इसकी जानकारी टीचर को स्क्रीनिंग 1 के द्वारा मिलती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोफाइलर की तरफ, जहाँ हम बच्चों के जो यूनिक टैलेंट्स है, स्ट्रेंथ्स है, उसे हाईलाइट कर पाते हैं। और हर एक बच्चे के कोई ना कोई टैलेंट्स, कोई ना कोई स्ट्रेंथ तो रहती ही है, और इसे हाईलाइट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को उस तरीके से मोटिवेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड हैज़ एन अफिनिटी टुवर्ड्स से सिंगिंग और पेंटिंग और म्यूजिक, so we can use that in probably teaching some concepts of science.
इसलिए किसी भी बच्चे के जो यूनिक टैलेंट्स और स्ट्रेंथ्स होते हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम साथ ही साथ बच्चों को मोटिवेशन भी दे पाए। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एडवांस स्क्रीनिंग। एडवांस स्क्रीनिंग में एग्जैक्टली बच्चे की क्या कंसर्न है इसके बारे में हम जान पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीनिंग 1 में राइटिंग डोमेन आइडेंटिफाई किया है हमने, तो भी राइटिंग डोमेन में एग्जैक्टली बच्चा कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्या वो ठीक से बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा है, क्या वो लेटर्स को इन्वर्स कर दे रहा है, जैसे बी का डी, पी का क्यू लिख रहा है, मिरर इमेज जिसे हम कहते हैं, या फिर वो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है। तो वेयर इज इट एग्जैक्टली दैट द चाइल्ड्स प्रॉब्लम्स लाई, इसकी पहचान हम एडवांस स्क्रीनिंग के माध्यम से कर पाते हैं। इसलिए एडवांस स्क्रीनिंग पूरे स्क्रीनिंग के प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि जब तक हम उस पर्टिकुलर कंसर्न तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम आगे चलकर बच्चे की मदद ही नहीं कर पाएंगे, तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमने कौन सा अप्रोच अपनाना है उस बच्चे के साथ। तो इसीलिए टीचर्स का एडवांस स्क्रीनिंग कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्क्रीनिंग जो हमने डिज़ाइन किया है वो क्लास स्पेसिफिक है, राइट फ्रॉम द प्री प्राइमरी क्लासेस टू क्लासेस 9th and 12th, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है दैट द चाइल्ड इज नॉट इन अ पर्टिकुलर क्लास एज पर हिज एज। तो इसीलिए स्क्रीनिंग को डिज़ाइन हमने क्लास स्पेसिफिक किया है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो स्क्रीनिंग के प्रश्न है उसका, आप देख सकते हैं ये स्क्रीनिंग 1 के प्रश्न है, और बहुत ही आसानी से टीचर को येस और नो में ही जवाब देना है। थ्रू आउट स्क्रीनिंग 1, थ्रू आउट प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग में भी सिर्फ येस और नो, हाँ या ना के माध्यम से टीचर्स को जवाब देना है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है, अपने आंसर्स पुट इन करने हैं, उनमें बस बटन दबाना है येस और नो का। तो ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं जिन्हें पढ़कर और अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर टीचर्स के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। एक बार किसी भी टीचर ने बच्चे की प्रोफाइल बना दी, तो टीचर्स को कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करने होते हैं, और एक बार अपने प्रोफाइल बना दी तो उसके बाद वो प्रोफाइल कुछ इस तरीके से, जो पहला स्क्रीनशॉट है वो एग्जाम्पल है कि किस तरीके से टीचर्स को वो प्रोफाइल अपने ऐप में दिखने लगेगी। और उसके बाद जो स्क्रीनिंग टीचर्स ने की है उसके रिपोर्ट भी टीचर्स उस प्रोफाइल के द्वारा ही एक्सेस कर पाएंगे। तो जो दूसरा स्क्रीनशॉट है वो एग्जाम्पल है जो हमारी फर्स्ट स्क्रीनिंग है उसके रिपोर्ट का, जहाँ वो डोमेन हाईलाइट होकर आता है। सपोजिंगली यहाँ एकेडमिक डोमेन हाईलाइट किया गया है, कॉग्निटिव डोमेन हाईलाइट किया गया है। तो इस तरीके से वो डोमेन हाईलाइट होकर आता है जहाँ उस बच्चे को कोई दिक्कत, कोई चैलेंजेस आ रहे हो, और उसी के साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं। और फिर जो एडवांस स्क्रीनिंग है उसका रिजल्ट कुछ जो थर्ड और फोर्थ स्क्रीनशॉट्स हैं वो एग्जांपल्स है ऑफ एडवांस स्क्रीनिंग्स रिजल्ट, wherein the exact problem, the specific concern is highlighted, so that we know exactly where is it that we have to work with the child. So if I know, for example, that the child is making is errors while omitting word endings, so that makes it more clear for me as to how and what strategy I have to use with the child. तो इसीलिए एडवांस स्क्रीनिंग में कुछ इस तरीके से स्पेसिफिक कंसर्न्स हाईलाइट किए जाते हैं। और ये सारे स्क्रीनिंग्स के रिपोर्ट आप सभी बच्चों के प्रोफाइल के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। और ये प्रोफाइल होना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है, बिकॉज अगर आपको कुछ स्कूल में मौजूद किसी और टीचर के साथ इस बच्चे के बारे में डिस्कस करना हो, या किसी और टीचर को इस बच्चे के साथ काम करना हो, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रोफाइल के द्वारा वो एक्सेस कर सकते हैं। और else if you want to talk to the principal of the school regarding this child, you can do so easily by accessing the profile, because you already have his basic details, the reports of his screenings handy with you. तो कुछ इस तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन बच्चे के प्रोफाइल के द्वारा आप एक्सेस कर पाते हैं। और एक बार हमने वो जो स्पेसिफिक कंसर्न है, जो प्रॉब्लम है बच्चे की, वो आइडेंटिफाई कर ली, तो हम आगे बढ़ पाते हैं फेज 3 में, जो कि इंटरवेंशन के ऊपर आधारित है। यहाँ टीचर्स को जो एजुकेशन प्लान्स है, जो स्ट्रैटेजीज है, वो शेयर की जाती है, ताकि अभी फाइनली के साथ काम करना शुरू कर पाए। तो एक नज़र डालते हैं जो इस फेज 3 में टीचर्स की जर्नी रहेगी वो कैसी रहेगी। तो सबसे पहले टीचर्स को फेज 3 के बारे में बताया जाएगा
उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से वो बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, किस तरीके से वो ऐप के द्वारा इन इंटरवेंशन प्लान्स को एक्सेस कर पाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन टीचर्स को दी जाएगी। उसके बाद टीचर्स को जो उन्होंने स्क्रीनिंग्स कंडक्ट करी है, उसमें से कोई एक केस चूज करना है कि फिलहाल उन्हें, जी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी टीचर्स से कि प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखिए। थैंक यू। तो जैसे कि मैं कह रही थी, उसके बाद टीचर्स को कोई भी एक स्टूडेंट चूज करना है जिसके साथ वो फिलहाल काम करना चाहेंगे। उसके बाद उस बच्चे के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके आधार पर एक एजुकेशन प्लान उन टीचर्स के साथ शेयर किया जाएगा। उन्हें ऐप के द्वारा ही ये एजुकेशन प्लान मिलेगा, वो स्ट्रैटेजीज शेयर किए जाएंगे ताकि उन्हें आसानी से पता चले कि किस तरीके से उन्हें काम करना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज उन्हें यूज करनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन ऐप के द्वारा टीचर्स के साथ शेयर की जाएगी। अब उसके बाद हर एक टीचर को एक स्पेशल एजुकेटर या फिर एक मेंटर के साथ पेयर किया जाएगा, ताकि जब भी इस पूरे जर्नी में वो उस बच्चे के साथ काम कर रही है, तभी उनके कोई भी डाउट्स हो, शायद कोई ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी हो जो इस बच्चे के साथ काम ना कर रही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दैट if there is one strategy that works with one child or a few children, it's not necessary that it will work with the next one. तो इसीलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है या फिर कोई और डाउट या और कोई क्वेरी आती है, तो वो इस स्पेशल एजुकेटर या मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। उनके साथ वो वीकली मीटिंग्स कर सकते हैं जहां वो अपनी प्रोग्रेस को अपडेट कर पाए, उस बच्चे की प्रोग्रेस को अपडेट कर पाए, और अगर उन्हें कोई और सजेशंस की ज़रूरत हो तो आसानी से उन्हें वो मिल पाए उस स्पेशल एजुकेटर या मेंटर के द्वारा। और ये पूरे 3 to 6 मंथ्स की जर्नी के बाद जब हम कंटिन्यूसली इस बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे, उसके बाद यही जो सक्सेस स्टोरीज होगी वो हम आगे चलकर बाकी टीचर्स के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि वो भी प्रभावित हो, वो भी मोटिवेट हो कि आप सभी ने कैसे अपने क्लासरूम्स में इन बच्चों के साथ काम किया है। तो कुछ इस तरह से पूरे इंटरवेंशन के प्रोसेस को डिज़ाइन किया गया है, जहां फ्रॉम द स्टार्ट द टीचर इज पेयर्ड विद अ स्पेशल एजुकेटर और अ मेंटर हु इज प्रेजेंट विद देम थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ वर्किंग विद द चाइल्ड, सो दैट इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, बिकॉज देयर आर मेनी टाइम्स वेयर हमें ऐसा लगता है कि नाउ वी आर स्टक, या फिर ये चीज़ काम नहीं कर रही है, या फिर हमें शायद कोई और सजेशन देना हो, तो आसानी से वो अपनी वीकली मीटिंग्स में उन स्पेशल एजुकेटर या मेंटर के साथ बात भी कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है जो इंटरवेंशन जैसे ऐप पर दिखेगा उसका। तो आप देख सकते हैं जो पहला स्क्रीनशॉट है वो दिखाता है कि किस तरीके से टीचर्स को वो जो कंसर्न्स हमने हाईलाइट किए हैं वो ऐप पर दिखने लगेगी। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली जो कंसर्न है, डज लेटर रिवर्सल्स सच एज रीड्स ब्रॉट एज ड्रॉप्ड। तो जब टीचर इस पर क्लिक करेंगी तो उन्हें इसके रिलेटेड एक इंटरवेंशन प्लान दिखेगा, जहां उन्हें समझाया जाएगा कि एग्जैक्टली वो कौन कौन से स्टेप्स अपना सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को सिखाने के लिए, कौन कौन से अकोमोडेशंस क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। तो उस इंटरवेंशन प्लान का भी एग्जाम्पल बगल वाले दिया गया है। तो इस तरीके से ये इंटरवेंशन प्लान इन डिटेल टीचर्स को समझाया जाएगा। और जो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो भी टीचर्स ऐप के द्वारा आसानी से कर पाते हैं। उन्हें लेवल्स मार्क करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेवल 1 is when the child needs both verbal and physical cue to complete the task. In level 2, the child needs only the verbal cue, and in level 3, the child is able to complete the task independently without any verbal or physical cue. तो इस तरीके से टीचर्स बच्चे की प्रोग्रेस को भी मार्क करते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले और साथ ही साथ उनके साथ जो मेंटर या स्पेशल एजुकेटर पेयर किया गया है, दे आर ऑल्सो अवेयर रिगार्डिंग द चाइल्ड्स प्रोग्रेस। तो इस तरीके से बहुत ही डिटेल्ड इंटरवेंशन प्लान टीचर्स को आसान भाषा में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो आसानी से रेफर कर सके, आसानी से पढ़ पाए और बच्चों के साथ काम कर पाए। तो जैसे कि मैं कह रही थी, हमारे फेज 3 में और भी कोर्सेज है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, रिगार्डिंग राइटिंग, रीडिंग एंड मैथमेटिक्स।
तो एक बार जो पिछले वाले कोर्सेज हैं वो सभी टीचर्स ने कंप्लीट कर दिए, तो उसके बाद स्क्रीनिंग कंप्लीट करने के बाद टीचर्स ये कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज टीचर्स तक पहुँचाई जाती है, ताकि अगर बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो ये जनरल स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर पाए, समझ पाए इन डिटेल इस कोर्स के द्वारा। तो जो इस कोर्स के द्वारा वीडियोस हमारे ऐप में उपलब्ध है, उसका भी एक सैम्पल मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और इसके बाद मैं आप सबके साथ वापस जुड़ूंगी। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and math, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. तो जैसे कि आप सभी ने देखा, ऐसे ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंटरवेंशन के दौरान भी टीचर्स तक पहुंचाए जाते हैं, ताकि वो डिटेल में समझ पाए कि एग्जैक्टली व्हाट इज मे बी कॉजिंग दिस प्रॉब्लम इन द चाइल्ड, व्हाट इज इट दैट एग्जैक्टली द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू। तो एक नज़र डाल लेते हैं जो यात्रा रहेगी टीचर्स की प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ, उस पर भी जो उनकी जर्नी रहेगी। उसकी शुरुआत कोर्स के द्वारा हम करेंगे, जहां टीचर्स को सेंसिटाइज किया जाएगा, उन्हें अवेयर कराया जाएगा इन डिसेबिलिटीज़ के बारे में और कैसे वो बच्चों को मदद कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद टीचर्स आगे बढ़ेंगे स्क्रीनिंग की तरफ, जहां पहले हम वो क्षेत्र की पहचान कर पाएंगे बच्चों को कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद प्रोफाइलर में हम बच्चों के जो यूनिक टैलेंट्स है, जो स्ट्रेंथ्स है, उसे हाईलाइट करेंगे ताकि हम बच्चों को उस पर बढ़ावा दे सकें। फिर हम आगे बढ़ते हैं एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ, जहां जी अतिया मैम ने कहा है दैट इट्स नॉट ऑडिबल। मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है?
Yes, ma'am. Yes, you are audible. हाँ मैडम आ रही है, आपकी आवाज एकदम साफ सुथरी आ रही है, एकदम क्लियर। थैंक यू सो मच जी। तो हम आगे बढ़ते हैं एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ, जहाँ जो एग्जैक्ट और स्पेसिफिक कंसर्न है बच्चे की, हम उसे पहचान पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एग्जैक्टली राइटिंग में बच्चे की दिक्कत कहाँ है, क्या वो कॉपी करते वक्त मिस्टेक्स कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, हम उसे डिटेल में जान पाते हैं। और एक बार हमने ये स्पेसिफिक कंसर्न, इस चैलेंज को पहचान लिया, तो हम आगे चलकर इंटरवेंशन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम आखिरकार बच्चों के साथ काम करना शुरू कर पाते हैं। क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना था जहां टीचर्स को फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड सपोर्ट मिल पाए। सिर्फ उन्हें सेंसिटाइज करके, सिर्फ बच्चे की स्क्रीनिंग कर हम रुक नहीं सकते हैं, हमें आगे चलकर बच्चे के साथ काम भी करना है। क्योंकि जब भी हम बच्चे के साथ काम करेंगे तभी ही हम उनकी ग्रोथ और जो उन्हें सपोर्ट चाहिए उसे प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये पूरी जर्नी टीचर्स ऐप के द्वारा कर सकते हैं और ये पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें ऐप के द्वारा मिल सकती है। और आगे चलकर जब टीचर्स इन इंटरवेंशंस को अपने बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और यही सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम यही सक्सेस स्टोरीज आगे चलकर प्रकाशित भी करते हैं, ताकि अन्य टीचर्स को भी पता चले कि बच्चों के साथ कैसे आप सभी अपने क्लासरूम्स में काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो भी मोटिवेट हो। तो कुछ इस तरीके से टीचर्स की जर्नी रहती है प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ। और अभी हम एक नज़र डालते हैं जो मैं बहुत प्राउडली आप सभी के साथ प्रेजेंट करना चाहूँगी कि अब तक हमने 3 लाख टीचर्स को इस प्रोग्राम के बारे में ओरिएंट कर लिया है। 1 लाख से ज़्यादा टीचर्स ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन के ऐप पर रजिस्टर कर लिया है और 33,000 से भी ज़्यादा टीचर्स ने जो हमारा कोर्स है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी देख सकते हैं कि कितने सारे टीचर्स हैं, ये नंबर कितना बड़ा है कि कितने टीचर्स को इस ऐप के द्वारा अपने क्लासरूम्स में फ़र्क महसूस हो रहा है, कितने टीचर्स को वो सपोर्ट हम पहुंचा पा रहे हैं जो जिनकी उन्हें ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक रेगुलर क्लासरूम में जब स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं तो टीचर्स आर समटाइम्स क्वाइट लॉस्ट कि हमें एग्जैक्टली कैसे इन्हें मदद करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम इन बच्चों को स्पेशल अटेंशन दे पाए। तो इसीलिए हमारे जो इंटरवेंशंस भी डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है कि टीचर्स उसे बिना बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दिए हुए भी एडमिनिस्टर कर सके अपने क्लासरूम में। तो इसीलिए इन सारे टीचर्स ने ऐप पर रजिस्टर किया है और हमारा कोर्स कंप्लीट किया है और उसका फ़र्क भी वो क्लासरूम्स में महसूस कर रहे हैं। और इस पूरे जर्नी में जो टीचर्स की पूरी जर्नी रहती है, राइट फ्रॉम द कोर्स कंप्लीशन टू द इंटरवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, हम टीचर्स के साथ पूरी तरीके से जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस का भी आयोजन होता है। जो हमारा फेज़ 1 है उसके लिए जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वो एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे शाम 4 बजे होते हैं। जो फेज़ 2 है उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे शाम 4 बजे होते हैं और फेज़ 3 के डाउट क्लियरिंग सेशंस एवरी मंडे शाम 4 बजे होते हैं। इसका एक लिंक चैट बॉक्स के द्वारा भी आप सभी से शेयर किया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सभी से कि इस लिंक को आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी अगर आप में से किसी को जो हमारे सेशंस है उससे ज्वाइन करना हो या फिर एनी टीचर इन द स्कूल वांट्स द लिंक टू ज्वाइन दीज सेशंस, तो यू कैन ईजिली प्रोवाइड इट टू हर। तो ये लिंक है आप सभी के साथ चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया गया है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि प्लीज़ इस लिंक को आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से जो ये सेशंस है उस पर ज्वाइन कर पाए और बाकी टीचर्स तक भी ये जो जानकारी है उसे पहुँचा पाए। आगे बढ़ते हैं जो कोऑर्डिनेटर्स के रोल जो इस प्रोग्राम के द्वारा बेनिफिट्स हैं उसकी तरफ। सबसे पहले जो हमारी इस प्रोग्राम के द्वारा कोशिश रही है वो है कि हम टीचर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हम कोशिश करते हैं कि हम टीचर्स को कंटिन्यूअस और थ्रू आउट सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए, ताकि उन्हें स्टार्ट से लेकर एंड तक अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो हम उसे एड्रेस कर पाए। ज्योग्राफिक इंक्लूसिविटी की तरफ भी हम काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने कोशिश की है कि हमारा जो पूरा कोर्स है, जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, वो भी हम रीजनल लैंग्वेजेस में टीचर्स तक उपलब्ध करा पाए, ताकि इंडिया में बैठा हुआ हर एक टीचर अपनी रीजनल लैंग्वेज में इस कोर्स को कंप्लीट कर पाए।
इसी के साथ साथ हम एजुकेशन ऑफिसर्स को भी ओरिएंट करते हैं ताकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, इंक्लूसिव लर्निंग की तरफ हम आगे बढ़ पाए। टीचर ट्रेनिंग्स हम रेगुलरली कंडक्ट करते हैं। तो ना ही टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ इस ऐप के बारे में भी अगर कोई भी ट्रेनिंग चाहिए हो या फिर इंटरवेंशन के वर्कशॉप्स भी हमारे ऑन अ वीकली बेसिस कंडक्ट होते हैं। उसी के साथ साथ जो स्पेशल एजुकेटर को ट्रेनिंग और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हर एक स्पेशल एजुकेटर को क्रॉस डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। पेरेंटल पार्टिसिपेशन, क्योंकि जब तक पेरेंट्स ओरिएंट और सेंसिटाइज नहीं होंगे तब तक हम बच्चों के लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। पर्सनलाइज इंटरवेंशंस, हमारा जो फेज़ 3 है उसके द्वारा हम कोशिश करते हैं ताकि हर एक बच्चे को जो अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड हम इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर पाए, उसके रिलेटेड हम स्ट्रैटेजीज टीचर्स तक प्रोवाइड कर पाए ताकि टीचर्स उसे आसानी से क्लासरूम्स में यूज़ कर पाए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हम कोशिश करते हैं कि हम एक एंड टू एंड सिस्टमैटिक चेंज की ओर काम कर पाए। हम कोशिश करते हैं कि राइट फ्रॉम सेंसिटाइजेशन टू इट्स इफेक्ट और टू इट्स वर्किंग ऑन द स्टूडेंट्स हम काम कर पाए ताकि एट द एंड हम बच्चों के साथ कोई चेंज ला पाए, हम बच्चों के लिए कोई चेंज ला पाए। और लास्टली हम कोशिश करते हैं कि हम सोशल इंक्लूजन को भी प्रमोट कर पाए ताकि इन बच्चों के लिए हम आगे चलकर एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट भी तैयार कर पाए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो इस प्रोग्राम के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हम टीचर्स तक भी पहुंचा पाए। तो आगे बढ़ते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स के की रोल्स रहेंगे इस प्रोग्राम के इस पूरे जर्नी में उसकी तरफ। तो हर एक स्कूल के द्वारा जो एक कोऑर्डिनेटर नॉमिनेट किया गया है, जो आप सभी इस सेशन में आज जुड़े हैं, तो आप कैसे टीचर्स को सपोर्ट कर सकेंगे उसकी तरफ। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम इंश्योर करें कि टीचर्स का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम रहे इस कोर्स के द्वारा, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स इस ऐप को डाउनलोड करें और उसके लिए रजिस्टर करें, क्योंकि जब तक हम इस ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो स्क्रीनिंग का फॉर्म है, हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे और आगे चलकर जो मेन चीज़ है टीचर्स तक इंटरवेंशंस पहुँचाना, हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स इस ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें ताकि वो उस कोर्स को भी एक्सेस कर पाए। तो इसीलिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कोऑर्डिनेटर्स के लिए वो है इनरोलमेंट फॉर द पीआई प्रोग्राम, ताकि टीचर्स को यहाँ मैक्सिमम सपोर्ट मिले और मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स जो ये कोर्स है उसके द्वारा जो जानकारी हम पहुँचाना चाहते हैं उसे एक्सेस कर पाएँ। उसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारा कोर्स है उसे कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी ही आगे चलकर जो स्क्रीनिंग और वो इंटरवेंशन है वो हम टीचर्स तक पहुंचा पाते हैं। और उसी के साथ साथ इस कोर्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हम टीचर्स तक पहुंचाना चाहते हैं अबाउट द डिसेबिलिटीज़, अबाउट सेंसिटाइजिंग द टीचर्स, हम वो भी पहुंचा पाते हैं। तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोऑर्डिनेटर्स के लिए वो है इंश्योर करना कि टीचर्स इस कोर्स को कंप्लीट कर पाए, और टीचर्स आसानी से इस कोर्स को 8 से 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। रोज़ाना अगर टीचर 1 घंटा भी इस कोर्स के द्वारा इस कोर्स की तरफ डेडिकेट करे तो 8 से 10 दिन में टीचर्स ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मैं देख सकती हूँ चैट बॉक्स में टीचर्स ने पूछा है कि क्या ये कोर्स आईफोन के लिए उपलब्ध है। तो आईफोन के लिए एक वेब लिंक है जो चैट बॉक्स के द्वारा आप सभी से शेयर किया जाएगा। तो इस वेब लिंक के द्वारा टीचर्स आसानी से इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर या अपने लैपटॉप पर। और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल प्ले के द्वारा जो हमारे ऐप का लिंक है वो भी आप सभी के साथ चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके लिए ये की रोल होगा कि वो टीचर्स को वो इंश्योर करे कि टीचर्स ये जो हमारा कोर्स है उसे कंप्लीट कर पाए, ये इन 8 से 10 दिन में ये जानकारी जो है वो ले पाए ताकि वो ये यूज़ कर पाए स्क्रीनिंग की तरफ। और स्क्रीनिंग के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स एटलीस्ट इन बच्चों की स्क्रीनिंग कर पाए ताकि वो जो चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए। और उसके बाद जो हमारे इंटरवेंशन के वर्कशॉप्स रहते हैं टीचर्स उसे ही ज्वाइन कर पाए, क्योंकि ये जो वर्कशॉप्स रहते हैं और उसी के साथ साथ जो डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव रहते हैं। तो अगर कोई टीचर का कोई डाउट ना भी हो और अगर सिंपली इन सेशंस को ज्वाइन करे तो इवन बाय लिसनिंग टू अदर्स हम बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं, सीख पाते हैं।
और जो वर्कशॉप्स रहते हैं हमारे इंटरवेंशंस के, उसमें तो हम काफ़ी स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करते हैं टीचर्स के साथ। कुछ टीचर्स अपने भी जो एक्सपीरियंस है, अपना जो फीडबैक है, वो भी शेयर करते हैं। तो ये कुछ की रोल्स रहेंगे व्हेन आई टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। फिर आता है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, कि चेक करना कि टीचर्स को अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो, अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो हम उसे वो प्रोवाइड कर पाए। और जो टीचर्स बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ उनका जो फीडबैक है, वहाँ उनकी जो सक्सेस स्टोरीज है, उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, अगर वो शेयर करना चाहे प्रोजेक्ट इंक्लूजन की टीम के साथ, तो वो आपके द्वारा कर सकते हैं। उन्हें बताना कि जो हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, वीकली सेशंस होते हैं, उन्हें वो ज्वाइन कर पाए। जो लिंक हमने आप सभी से शेयर किया है, वो आप टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन सेशंस में जुड़कर भी वो काफ़ी नई चीज़ें आसानी से जान पाए और सीख पाए। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, वो है इंश्योरिंग दैट टीचर्स एटलीस्ट 2 बच्चों की स्क्रीनिंग करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स शायद इस कोर्स के लिए एनरोल कर पाए, लेकिन फिर आगे चलकर स्क्रीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम बच्चों की वो कंसर्न है उसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम बच्चे के साथ आगे चलकर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट टीचर्स कंप्लीट द स्क्रीनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स, एंड देन गोइंग अहेड शी कैन स्टार्ट वर्क विथ 1 स्टूडेंट। तो इसीलिए मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में भी कोऑर्डिनेटर्स का एक की रोल रहता है। और उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन और सपोर्ट में भी, अगर टीचर्स को कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, अगर टीचर्स को कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आप सभी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट इंक्लूजन की टीम को भी से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिकॉज यू विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर्स ऑफ योर स्कूल एंड द प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम। सो उन्हें अगर कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आप आसानी से उसे कन्वे कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। जो डेटा है, जो डिटेल्स है, उसे आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और या फिर कोई टेक्निकल सपोर्ट की भी ज़रूरत हो, तो उससे भी आप हमारी टीम तक वो कंसर्न्स कन्वे कर सकते हैं, और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि वो आपकी मदद करे। तो ये कुछ की रोल्स है जो कोऑर्डिनेटर्स अपनी टीचर्स के लिए निभाएंगे, ताकि हम मैक्सिमम टीचर्स तक ये जो प्रोजेक्ट है उसे पहुंचा पाए, और मैक्सिमम टीचर्स अपने बच्चे के साथ भी काम, अपने जो क्लासरूम्स में बच्चे हैं उनके साथ भी काम कर पाए। तो अभी मैं आप सभी के साथ एक बारकोड शेयर करना चाहूँगी, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो कोऑर्डिनेटर्स असाइन किए गए हैं, एवरी स्कूल एक कोऑर्डिनेटर असाइन किया गया है, एक कोऑर्डिनेटर नॉमिनेट किया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो जो 1 कोऑर्डिनेटर पर स्कूल है, वो इस बारकोड को स्कैन करे, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसे ज्वाइन कर ले। और इस ग्रुप के द्वारा अगर उन्हें कोई अपडेट्स पहुंचानी हो, या फिर हमारी टीम को उन तक कुछ अपडेट्स पहुंचानी हो, तो आसानी से हम यहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस ग्रुप का जो लिंक है वो चैट बॉक्स के द्वारा भी आप सबकी से शेयर किया जाएगा। तो जो वो लिंक के द्वारा इस ग्रुप को डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आसानी से कर सकते हैं, या फिर आप इस बारकोड को स्कैन करके भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी टीचर्स से कि आप प्लीज़ इस बारकोड को स्कैन कीजिए, या फिर जो चैट बॉक्स में लिंक है उसके द्वारा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसे डाउनलोड कीजिए, ताकि जो पर स्कूल 1 कोऑर्डिनेटर नॉमिनेट किया गया है, वो अगर उन्हें कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, वो इस ग्रुप के द्वारा हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम भी आसानी से अपडेट्स उस कोऑर्डिनेटर तक पहुंचा सकते हैं। जी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि प्लीज़ इस बारकोड को डाउनलोड कर लीजिए, प्लीज़ इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए। आई होप जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने ही इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। पर स्कूल एक कोऑर्डिनेटर नॉमिनेट किया गया है, तो सिर्फ उन कोऑर्डिनेटर्स को ही इस ग्रुप पर ज्वाइन होना है। इसका लिंक चैट बॉक्स के द्वारा भी आप सभी से शेयर किया गया है, तो आप उस लिंक के थ्रू भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं,
तो अगर किसी टीचर को कुछ सपोर्ट की ज़रूरत हो या फिर आपको भी हमारी टीम तक रीच करना हो, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा या फिर हमारे मेल के द्वारा इसे हम तक पहुंच सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो मेंशन किया गया है और जो टाइमिंग्स है वो भी मेंशन की गई है। तो अगर किसी टीचर का कोई डाउट हो तो वो हम तक इस व्हाट्सएप नंबर तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐप रिलेटेड उन्हें कोई कंसर्न्स आ रहे हो तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें बता सकते हैं, और जो हमारा ईमेल आईडी है वो भी शेयर किया गया है, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप सभी से चैट बॉक्स के द्वारा भी शेयर किए गए हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस जो ये नंबर है और ये जो मेल आईडी है उसे सेव कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर किसी टीचर को भी इसकी ज़रूरत पड़े तो वो आप आसानी से उन्हें प्रोवाइड कर पाए। और लास्टली जो हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप है, जिसके द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन प्लान आप तक हम पहुंचा सकते हैं, उसका बार कोड, उसका QR कोड आप सभी के स्क्रीन्स पर अभी है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी प्लीज़ इसे स्कैन कीजिए ताकि आप हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर पाए। जो वेब लिंक है इसके लिए वो चैट बॉक्स के द्वारा आप सभी से शेयर किया जाएगा, ताकि आप इस लिंक को क्लिक करके भी आसानी से प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं देख सकती हूँ किसी ने कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी कहा था, वो भी चैट बॉक्स के द्वारा आप सभी से शेयर किया गया है। और जो हमारे ऐप का लिंक है वो भी चैट बॉक्स के द्वारा आप सभी से शेयर किया गया है। और जो टीचर्स अभी इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, वो इस कोड को स्कैन करके भी हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो वेब लिंक है वो भी चैट बॉक्स के द्वारा iOS यूजर्स के लिए शेयर किया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी टीचर्स से कि इस लिंक के द्वारा और या फिर इस QR कोड के द्वारा आप सभी हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि हम आप सभी तक इस इंफॉर्मेशन को पहुँचा सकें। जी, और अगर फ़िलहाल किसी टीचर के कोई डाउट्स या कंसर्न्स हो इस सेशन के बारे में या फिर हमारा ऐप है उसके बारे में, तो आप सभी अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो आप अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। मैडम, जी सर। I want to know whether we will get a notification about any training or anything about this program on our WhatsApp or regarding mail. Sorry sir, I couldn't understand you very clearly. Notification regarding what, sir? Regarding the different trainings of project inclusion. Definitely. Our team will definitely contact you regarding the trainings that are conducted through the app. So once you go ahead and complete the course and the screening of the children, then the workshops that are conducted regarding our intervention, you will definitely be notified by our team regarding these regular workshops that we conduct. Thank you. Thank you, sir. Ma'am, I have a question. Yes, ma'am. Yes. If any teacher didn't find a student in screening part, okay, so he's not doing that part, phase second, then he can jump directly to the intervention also. Sorry, ma'am, your voice was breaking in the middle. If the teacher is not doing the screening. Yeah, if a teacher is not doing screening because there is no child in his class, okay, so he's not doing that phase second, so he can. Rajvi, can I give the answer? I could get that, but so ma'am, first of all, intervention तभी होगी जब हमें बच्चे में problem पता चल रही होगी. If you are saying that if we are not, you don't find anybody in the class that you want to screen, there is no issue, then whom you are going to provide the intervention. So intervention is that कि when you are finding out something कि there is something missing in the child, and screening will help you which area of the child is having a problem so that you can provide the right intervention.
So I will always say that कि screening doesn't work on the assumptions. Most of us what happens that हमें लगता है कि ठीक है बच्चा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन स्क्रीनिंग इज जस्ट टू choose whatever the questions are asked, just give the answers, and let it be rest on the screening tool that what kind of a report you get. The only criteria for screening is that any child in your class which is having a low academic performance, चाहे आपको लग रहा है बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी लो एकेडमिक परफॉर्मेंस का रीजन तो आप जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा जिसकी लो एकेडमिक Yes, परफॉर्मेंस है, we can add the slow learner child in that. नहीं, You हाउ need to कैन say वी that. से द चाइल्ड इज स्लो लर्नर? यही तो हम अभी तक जो हमारी लर्निंग प्रोजेक्ट इंक्लूजन से वो ये है कि हमारी लिमिटेड नॉलेज, हमने हमने ये नहीं ध्यान दिया कि बच्चा स्लो लर्नर है या उसको कोई प्रॉब्लम है पीछे। तो स्क्रीनिंग टूल विल एक्चुअली टेल यू कि बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर वो स्लो लर्नर है तो स्लो लर्नर की तरह आपके पास आएगा वो। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ये आएगा कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ और एरिया में ध्यान दीजिए कि कहाँ पे कुछ और परेशानी है जो आपने ध्यान ना दी हो। तो स्क्रीनिंग टूल का मतलब ये है कि हम स्क्रीनिंग टूल इज नॉट यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions। इसीलिए हम स्क्रीनिंग टूल देते हैं कि जिससे कि आप सिर्फ ये देखें कि अगर बच्चे की परफॉर्मेंस लो है, बच्चे में कोई बिहेवियर इशू है, या बच्चा और बच्चों से अलग है, ये 3 क्राइटेरियाज हैं स्क्रीनिंग टूल यूज करने के। तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपके पास है, उसके बेसिस पे आप स्क्रीनिंग करिए, एंड लेट स्क्रीनिंग टूल गिव यू द इंफॉर्मेशन कि हाँ बच्चे में यहाँ पे परेशानी है, यहाँ परेशानी नहीं है। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हम सेम गलती जानने के बाद आफ्टर द नॉलेज भी वी विल बी डूइंग द सेम मिस्टेक। सो क्योंकि बच्चे जब आप पढ़ रहे हैं, आई होप कि यू हैव डन द कोर्स, आपने प्रोजेक्ट इंक्लूजन का फेज 1 कर लिया है। अगर आप फेज 1 ऑफ द प्रोग्राम यू हैव कंप्लीटेड, यू विल सी दैट कि प्रॉब्लम बच्चों में सिमिलर नजर आती है, लेकिन उसके पीछे का जो परेशानी होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो स्क्रीनिंग टूल आपको हेल्प करेगा कि कौन सा डोमेन अफेक्टेड है, जिससे कि आप राइट इंटरवेंशन यूज कर सके और बच्चे को फायदा हो सके। आई होप आई एम एबल टू एड्रेस योर Okay, क्वेश्चन। ma'am. And one more question. हाँ Like जी, after completing of that only we can do other course like reading after completing of second phase. हाँ जी, हाँ जी। After reading of second phase, what did you ask? No, I'm just asking after completing the phase second, we can launch another course like reading, writing one. Yeah, so reading and writing are the open courses which are after when once you screen the child. So that is for your help. You need not to do the compulsory course for that. We have created, suppose आपने जो बच्चा स्क्रीन किया उसकी रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, यू आइडेंटिफाई कि उसकी रीडिंग में प्रॉब्लम है, आपको इंटरवेंशंस भी दी हुई हैं, लेकिन आप इंटरवेंशंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रीडिंग कोर्स पे जाएंगे तो वीडियो के माध्यम से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छा ये ऐसे करना है। तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रीडिंग के बारे में और अच्छे से समझने के लिए मिलेगा। बट वो वाले कोर्सेज कंपलसरी नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए हैं इफ यू वांट टू। Okay, got it. Thank you. यू वेलकम। बट वी आर रियली एक्सपेक्टिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम मुंबई रीजन, बिकॉज मुंबई रीजन में मैक्सिमम टीचर्स ने फेज 1 कंप्लीट कर लिया है। और ये हमेशा याद रखिए कि हर क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्क्रीनिंग की जरूरत है। तो आप सो आई विल से कि कम से कम 4 या 5 बच्चों की स्क्रीनिंग जरूर करें अगर आपने कोर्स किया है। इससे आपकी जो लर्निंग है वो भी बेहतर होगी, बिकॉज आपने जो पढ़ा है उसको कैसे आप समझेंगे कि मैं लॉन्ग टर्म तक इसको रिटेन कर पाऊं, क्योंकि अगर आप फेज 3 में नहीं पहुंचते ना, तो इट विल बी लाइक एनी अदर ट्रेनिंग कि आपने बस पढ़ा समझा और भूल गए। तो लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस में करेंगे, बच्चे के साथ इंटरवेंशंस करेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में आपको फिर जरूरत नहीं है किसी ट्रेनिंग की। यू विल बी एबल टू डू योरसेल्फ। Yes, Sure, ma'am. Pradeep. Yeah, Pradeep sir is raising a hand. You want to ask something? Yes, sir. Pradeep sir, you want to ask something? Pradeep Yadav sir. Anybody else want to ask something?
Yes, ma'am. Yes. हाँ जी, Good हाँ जी, afternoon, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। This is Sonia Sharma from PM Shri KVINS Mandavi, ma'am. Ma'am, I just wanted to ask कि if five teachers are teaching one class, so might be their students will be the same. Then कैसे teachers क्या हर किसी teacher को अलग-अलग बच्चों की screening करनी है? क्या बहुत एक दूसरे के साथ दिस contact इज करना है? इम्पोर्टेंट मैम, Yes. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, क्योंकि देखिए पहली 2 क्लासेस में हम समझते हैं कि मदर टीचर है, वही सारे सब्जेक्ट्स ले रही हैं, बट एज वी गो हायर इन द क्लासेस, सो वी विल एक्सपेक्ट कि जो क्लास टीचर है वो करे स्क्रीनिंग। बिकॉज जब क्लास टीचर्स करेंगे, ये हो सकता है कि कुछ इनपुट्स के लिए उनको सब्जेक्ट टीचर्स की मदद लेनी पड़े। सपोज शी इज फिलिंग अ स्क्रीनिंग टूल एंड शी आस्क्ड वांट टू आस्क समथिंग ऑन द मैथमेटिकल स्किल्स पे, कोई क्वेश्चंस हैं उनको नहीं मालूम है, शी इज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर, तो शी कैन एक्चुअली कंफर्म फ्रॉम द अदर टीचर्स जो उस बच्चे को पढ़ा रही हैं, सो दैट की जो स्क्रीनिंग टूल है वो प्रॉपर भरा जाए, क्योंकि एक ही बच्चे को 4 टीचर स्क्रीन करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और हर क्लास के अंदर एक क्लास टीचर है ही है। लेकिन क्या होगा कि जब वो क्लास टीचर स्क्रीनिंग करेगी, जब इंटरवेंशन फेज आएगा, अगर हमें लगता है कि बच्चे की मैथमेटिकल स्किल्स में प्रॉब्लम है, और वो टीचर खुद तो हिंदी पढ़ाती हैं, लेकिन मैथमेटिकल टीचर्स को हम साथ में इंटरवेंशन में जोड़ लेंगे, जिससे कि उस बच्चे को कैसे हैंडल करना है वहां पे हम उनको साथ में जोड़ पाए। बट स्क्रीनिंग हैज टू बी डन बाय क्लास टीचर्स। So one child will be screened by one teacher only. वन अब एक टीचर 5 बच्चों को भी कर सकती है अगर उनको जी अपनी मैम, क्लास। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और अगर इंटरवेंशन में कैसे हम दूसरे टीचर को ऐड कर सकते हैं मैम? क्या हम थ्रू ऐप कर सकते हैं? हाँ जी, हम उसी ऐप पे जब तीसरे फेज में जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे उनको इंटरवेंशन में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ हम उस टाइम पे आपको जब मेंटोर मिलेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है 1 to 1 हम टीचर्स के ग्रुप के साथ बात करें, आपके स्कूल उन बच्चों के जो टीचर्स इन्वॉल्व हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि बच्चे का स्क्रीनिंग में रिजल्ट कैसा आता है। बट इट्स गुड मैडम, यू हैव आस्क्ड अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। और थैंक यू मैम, ऐसा थैंक भी यू हो सो मच। सकता है कि जैसे बच्चे को जी मैथमेटिकल स्किल्स में प्रॉब्लम है, और जी जो जो लेकिन क्लास टीचर को बच्चे का सारा पता होता है। सपोज वो सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा रहे, लेकिन उनको ये पता होता है ये बच्चा सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड उनके थ्रू जाती है। तो ऐसे में क्लास टीचर को ही स्क्रीनिंग भरनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, उस टीचर को इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए स्क्रीनिंग टूल भरने में। दैट विल बी देन हम जो स्क्रीनिंग भरेंगे वो बहुत अच्छी होगी और एक्यूरेट होगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो सो मच मैम, दिस इज इम्पोर्टेंट। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मीना, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैडम। हाँ, मैम मेरा ये प्रश्न था कि क्या हमें फेज 2 करने के बाद भी सर्टिफिकेट मिलेगा? देखिए फेज 2 के बाद नहीं मिलेगा, फिर फेज 3 के बाद। देखिए स्क्रीनिंग तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन जब आप 6 महीने या जब लगातार एक बच्चे के साथ काम करेंगे और चेंज आ रहा है, डेफिनेटली सर्टिफिकेट के ऊपर भी मिलेगा, बिकॉज एक वो बहुत बड़ी आपका योगदान होगा उस बच्चे के लिए, विच नीड्स अ रिकॉग्निशन। सर्टिफिकेट तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन वी विल फेलिसिटेट दोज टीचर एट अ नेशनल लेवल, एट अ स्टेट लेवल ऑल्सो, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके मैम, थैंक यू। और उससे बड़ा सर्टिफिकेट आपको बच्चा देगा कि जब वो बच्चे में आप रिस्पांस देखेंगे, तो शायद उससे बड़ा सर्टिफिकेट रिवॉर्ड कोई और होगा नहीं। जी डेफिनेटली। दैट्स वेरी नाइस सेइंग मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? बट मैम वी आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर दिस सेशन कि हमारे पास अगले 2-3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग्स आएंगी। और देखिए हमारा पर्पस ये है कि आप अपने जब डाउट क्लियर कर रहे हैं, आपको यही डाउट अपने स्कूल के टीचर्स के भी क्लियर करने हैं, और इंश्योर करना है कि आपके जो टीचर्स हैं पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। और आप अभी इसके बाद शायद आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी हमने जो कोड दिया है, देखिए ये व्हाट्सएप ग्रुप का पर्पस ये है कि हम एक क्लोज कम्युनिटी है, हम ये रीजन वाइज हम बना रहे हैं कम्युनिटी, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी लेवल पे है टाइमली पता चल जाए और हम आपको सपोर्ट कर पाए। और इस ग्रुप के अंदर किसी भी तरीके की हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना चाहते, ना ही करते हैं, ना ही कोई पर्सनल कोई बातें होती हैं इसमें। ये बहुत ही फोकस ग्रुप है। ऐसा नहीं कि हम गुड मॉर्निंग कुछ मैसेजेस या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जितने भी हम सब लोग हैं, हमारे पास अपनी लाइफ में बहुत सारे एजेंडाज एंड बिजी हैं, तो जो भी फोकस वर्क है हम उसी पे सिर्फ ध्यान देते हैं। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं, क्योंकि वो हमें भी हेल्प करेगा और आपको भी हेल्प करेगा इस प्रोग्राम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में।
One more question, ma'am, हाँ please. जी। As you have talked कि class teachers will assess or they will screen 4 to 5 child or as per the need of the students. हाँ जी। बट अभी बात आती है क्योंकि कोऑर्डिनेटर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट अबाउट द नॉन क्लास टीचर्स लाइक आर्ट टीचर एंड एनी अदर टीचर जो मैथ्स नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है मेन। तो जो भी टीचर्स जो क्लास टीचर्स नहीं है लेकिन उनको लग रहा है इस बच्चे के साथ परेशानी है और वो उस क्लास टीचर से बात जरूर करें। अगर सपोज आपने बिल्कुल ठीक बोला, हो सकता है बच्चे का पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे में वो टीचर स्क्रीनिंग कर सकता है अगर क्लास टीचर ने स्क्रीनिंग नहीं भरी है। अगर आप खुद भी स्क्रीनिंग भरेंगे ना, तो अगर उन क्लास टीचर ने स्क्रीनिंग भरी है तो आपके पास मैसेज ही आ जाएगा कि बच्चा पहले से रजिस्टर्ड है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि डबल काम ना हो भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो नॉन क्लास टीचर्स हैं और बच्चे ने उन्होंने स्क्रीनिंग नहीं भरी है, तो बिल्कुल एज अ टीचर आप भर सकते हैं, वो आपको पूरी लिबर्टी है। हमारा Yes, पर्पस है ma'am. बच्चा नहीं छूटना चाहिए किसी भी तरीके। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। ये बिल्कुल था क्योंकि नॉन क्लास टीचर्स विल डेफिनेटली आस्क। हाँ बिल्कुल, एंड देखें स्पोर्ट्स टीचर ऐसा हो सकता है उनको ऐसी कोई चीज नजर आ रही हो जो टीचर्स को नजर नहीं आ रही है, तो अगर उनको स्पोर्ट्स टीचर्स को लग रहा है कि ऐसा कुछ है, दे वांट टू यूज द स्क्रीनिंग, दे कैन डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और पर्पस यही कि जो भी स्क्रीनिंग भरे जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, उस राइट रिसोर्स से इंफॉर्मेशन जरूर लीजिएगा। ऐसे नहीं है कि चलो ये मेरे को तो ये पता था, बाकी में मैं तुक्का मार देता हूँ। अगर आपने थोड़ा सा भी बिना सोचे हुए स्क्रीनिंग टूल यूज करा तो उसके रिजल्ट जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो देखिए, हम इसीलिए स्क्रीनिंग टूल पहले नहीं देते हैं, हम हमेशा ट्रेनिंग के बाद देते हैं कि फेज 1 कंप्लीट करिए। पर्पस है कि जब आप स्क्रीनिंग टूल यूज करें तो आप इतने सेंसिटिव होने चाहिए कि मेरे इस स्क्रीनिंग से बच्चे की पूरी लाइफ आगे डिपेंड करती है, उसका इंटरवेंशन प्लान डिपेंड करता है, उसका सारा रिस्पॉन्स। तो अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लगता है क्लास टीचर दे सकती हैं, बच्चे का पेरेंट दे सकता है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हमने टीचर से पूछे हैं वो स्कूल सेटिंग के पूछे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि आपको पेरेंट तक जाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एट एनी पॉइंट आपको लगता है कि नहीं ये चीज मेरे को क्लियर नहीं, मैं पूछ लूं, तो प्लीज टेक द हेल्प ऑफ योर कलीग्स एंड पेरेंट्स। यस सर, प्रदीप सर आप पूछना चाहते हैं कुछ? हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, निमिषा मैडम। मैम, जैसे अभी सेशन शुरू हुआ है तो कुछ लोगों के पास बिल्कुल नई क्लासेस आई हैं, दे हैव नॉट ऑब्जर्व द चिल्ड्रन फॉर 6 मंथ्स। दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे पास भी आ रहा है कि अभी सेशन शुरू ही हुआ है तो नई ऑब्जर्वेशन आई हैं। तो मैं यही कहूंगी कि इसके अंदर आप जो पुरानी टीचर उनकी हेल्प लें भरने के लिए, क्योंकि 6 महीने वेट करेंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। दैट इज देयर, इफ यू कैन इन्वॉल्व, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं टू इन्वॉल्व द लास्ट ईयर टीचर एंड सो बेहतर होगा, बट डेफिनेटली नहीं भर पाएंगे। आपका जो कंसर्न है बहुत ही वैलिड है। ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस तिया मैडम, आप यस। यस मैम, जैसे अभी आप पहले बता रहे थे कि दूसरे टीचर्स, मिसलेनियस टीचर्स भी इसमें स्क्रीनिंग कर सकते हैं, सो क्लास टीचर को पहले करना है। तो इज इट कंपलसरी कि हम पूरा 100% जो स्ट्रेंथ है, 55 का हमारा क्लास का स्ट्रेंथ है, तो सारा बच्चा कहीं ना कहीं स्क्रीन होना चाहिए? नहीं मैम, इसलिए नहीं हम कहते। देखिए, आपका 80% बच्चा आपका एवरेज और अबव एवरेज परफॉर्मर है, मतलब वो पढ़ रहा है, और जो एक एवरेज बच्चे से जितना स्कोप किया जाए वो सब कर रहा है, तो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। डोंट गेट ओवरवेल्म कि मेरे को सारे के सारे बच्चों को स्क्रीन करना है। हमें उतने बच्चों को स्क्रीन करना जहाँ पे हमें परेशानी आ रही है। हाँ, जो हमारे स्लो लर्नर्स हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करके हमें करना है। चाहे लो एकेडमिक हो या कोई बिहेवियर इशू भी हो सकता है। आप किसी ऐसे, कई बार होता है कि मेंटल हेल्थ इशू हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, बच्चा शायद फर्स्ट में ठीक चल रहा था लेकिन अब धीरे धीरे मेंटल हेल्थ इशू आना शुरू हो गया। तो मैंने 3 क्राइटेरिया बार बार बता रही हूँ कि एक, या तो एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए प्रॉब्लम में, या बिहेवियर इशू होना चाहिए, या बच्चा दिखने में अलग लग रहा है। कई बार हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो ये समझ के चलिएगा कि ये तीनों में से मैं कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं स्क्रीन टूल यूज करूंगी इस बच्चे, चाहे वो 5 बच्चे हो, 6 हो, 7 हो, वो आपको देखना है।
जी मैम। तो मैम इसमें हम स्पेशल एजुकेटर को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, फिर बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास स्पेशल देखिए स्पेशल एजुकेटर्स को तो हम स्पेशल एजुकेटर्स के लिए टूल लेकर आ रहे हैं। हमने ये प्रोग्राम इसीलिए रखा है, स्पेशल एजुकेटर कोर्स जरूर करेंगे। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दिस स्पेशल एजुकेटर की फेज 1 करेंगे और फेज 2 में क्योंकि जब टीचर्स निकाल कर लाएंगी तो हम स्पेशल एजुकेटर्स के साथ मिलेंगे, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट स्कूल में करना है, हम ऑनलाइन करेंगे। तभी पूरा पर्पज ही यही है। और स्पेशल एजुकेटर्स के लिए टूल उनके लेवल का लेकर आ रहे हैं जिससे कि वो फर्दर उनको हेल्प करेगा बच्चे की असेसमेंट करने में। दैट इज देयर, तो बिल्कुल इन्वॉल्व करिए और स्पेशल ओके मैम। एजुकेटर्स को मैम प्लीज आपने टूल जो दें। ऐप की बात की है हाँ कि जी। सब्जेक्ट टीचर्स को इंटरवीन करना है, ऐप में उनका शो होगा, तो वहां पर फिर हम स्पेशल एजुकेटर ऐप में आ सकते हैं? हाँ जी, वो कंबाइन भी ऐप में? वी आर वर्किंग ऑन दैट ओनली कि कैसे लिंकेजेस करेंगे। चाहे अभी हमें हमें मैनुअल करना पड़े, बिल्कुल उनका उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और हमारी पूरी टीम देखिए, मुंबई में हमारी एक डेडिकेटेड टीम होने वाली है, 4-5 लोग हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगेगा कि इस स्कूल में ज्यादा जरूरत है, कभी ऑफलाइन भी कोई जाकर विजिट करके हमें कुछ बताना है या पेरेंट सेशन में आना है, वी विल बी गिविंग यू द फुल सपोर्ट इन दैट आल्सो। थैंक यू मैम। बट वी आर वेरी होपफुल कि मुंबई से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है। और मैं अगेन अपनी तरफ से मुंबई के लिए क्लैपिंग की, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। एंड एलिस मैडम को मैं अगेन धन्यवाद देना चाहूंगी और शाहिदा मैडम को कि बहुत उनकी लीडरशिप में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ। Thank you, ma'am. Thank you so much. एनी अदर क्वेश्चन? बट आई एम हैप्पी बिकॉज क्वेश्चन जब थैंक आप यू पूछते मैडम। हैं तो सबके लिए भी बहुत क्लैरिटी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्होंने पूछे हैं। थैंक यू सो मच। सो आई होप कि अब हम सेशन के अंतिम उस पे हैं, हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? Madam, अदरवाइज हाँ जी, हाँ जी। last session, what happened? PI also, is given the app, and many schools register the student on that app. Now this year, what actually you are going to do? हाँ जी सर। Last session, in many schools, PI app was downloaded by the teachers. हाँ जी, They just register the special cases. हाँ जी। This year, what is the next step you are going to do for that? सो सर अब हमारे पास इंटरवेंशन प्लान है। लास्ट ईयर जब किया था तो टीचर्स ने रजिस्टर किया था तो कोर्स कंप्लीट कर पाए थे। लेकिन अभी स्क्रीनिंग टूल आ गया है, तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट है ऐप पे तो आप उसके बाद आगे जाकर अपना स्क्रीन बच्चों को करें, जो हमारी बात हो रही है, और उसके बाद इंटरवेंशन शुरू कर दें। अगर किसी वजह से आपने कोर्स ऐप पे रजिस्टर किया था, कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो पहले कोर्स कंप्लीट करें। तो वो अब ऑटोमेटिकली तीनों अब पूरा ऐप पूरी तरह से तैयार है। और हम चाहते हैं कि अब इंटरवेंशन ज्यादा पे काम करें, बच्चों के साथ काम करें, जिससे कि हम भी देख पाए कि जो हमने सीखा है वाकई में वो बच्चों पे अप्लाई हो रहा है। नहीं, लेकिन मैडम देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट क्या होता था कि जैसे हमने रजिस्टर किया तो उसको एडिट नहीं कर पाते थे हम, तो काफी ऐसे नॉर्मल तो उसमें चले गए, लेकिन हम एडिट नहीं कर पाए उसको। सर अब वही आप लोगों के फीडबैक से हमने वो सारे फीचर्स उसमें डाले हैं। देखिए जब तक यूजर, देखिए हम जब भी कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो अपनी एक सोच के साथ बनाते हैं, लेकिन असली तब फायदा होता है जब यूजर उसको यूज करता है, क्योंकि कस्टमर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप लोगों के फीडबैक थे, आप मेरे को ध्यान है कि दिसंबर में ऐप क्रैश हुआ था, मुश्किल आई थी काफी लोगों को ऐप पे रजिस्टर करके काम करने की। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें ऐप बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें वो सारे चेंजेस हैं, एडिट कहाँ करना है। दूसरा, जैसे हमने व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर दिया हुआ है कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हमें इमीडिएटली हमें बताएं, सो दैट हम आपको सपोर्ट कर पाए। तो अभी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर है पहले से, और आप लोगों का ही इसमें, आप लोगों की वजह से हम ऐप को बेहतर भी कर पाए हैं। धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू।
So thank you so much. Thank you everyone for joining this session. Again, I really want to thank you, Shaida madam and Alice madam, for giving us an opportunity and creating a wonderful session for us, audience for us. And you have been an amazing audience. You have been so consistent and आप ध्यान से सुनते रहे. ये बहुत ही जरूरी था और आशा करती हूँ कि ये जो भी समय हमने यहाँ पे इस्तेमाल स्पेंड किया है, हम उसका सही फायदा भी उठाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट इंक्लूजन में. और जो हमारा एक ड्रीम है कि लेट्स मेक द कम्युनिटी मोर इंक्लूसिव, जो बच्चे न्यूरो डाइवर्सिटी में हैं उनको पूरा मौका मिले एजुकेशन में आगे बढ़ने का. इसी के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you.